Hello friends, welcome to Arevar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us talk about June 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे जून 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, now let us talk about 1st of June 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे 1 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में. But before starting this, let us have a look on some important news headlines related to the 1st of June 2021. So the first important news headline of today's is Mary Kom settles with silver medal at 2021 Asian Boxing Championships. Indian pugilist Mary Kom lost to two-time world championship Nazim Kazibay of Kazakhstan to settle for silver medal at the 2021 ASBC Asian Boxing Championships in Dubai. The five-time Asian Championships gold medalist Mary Kom was competing in a high-octane 51 kg final. This is the second silver for Mary Kom at the Asian Championships. हमें पता होना चाहिए कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में फाइनल में हारी है मैरी कॉम. रजत पदक से करना पड़ा संतोष. भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम दुबई में 2021 ASBC मतलब एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक के लिए 2 बार के विश्व चैंपियन कजाकिस्तान के नाजिम किजाबेई से हार गई हैं. 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता मैरी कॉम ने हाई ऑक्टेन 51 किलोग्राम फाइनल में भाग लिया था. एशियाई चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए यह दूसरा रजत पदक रहा है और 5 बार इन्होंने जो है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीत चुकी है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. Next important news headline of today's is a book titled Languages of Truth Essay 2003 to 2022 by Salman Rushdie. A book titled Languages of Truth Essay 2003 to 2020 authored by Salman Rushdie is his new book. Rushdie attempts to perform a defensive castling move. He suggested his work has been misunderstood and mistreated because the literary culture has turned from biofilled imaginative writings toward the humbler delights of autofiction as exemplified by the work of Elna Fernet and Karl Ove Nusadri. हमें पता होना चाहिए कि सलमान रुशीद की पुस्तक लैंग्वेज ऑफ यूथ एसेज 2003 to 2020 सलमान रुशीद ने लैंग्वेज ऑफ यूथ एसेज 2003 to 2020 नामक पुस्तक लिखी है. अपनी नई पुस्तक में रुशीद एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं. उनका सुझाव है कि उनके काम को गलत समझा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है क्योंकि साहित्यिक संस्कृति ब्यूरो भरे कल्पनाशील लेखन से ऑटोफिक्शन के विनम्र प्रसन्नता की ओर बदल गई है, जैसा कि एलेना फेरेंटे और कार्ल ओवे नोसगार्ड के काम का उदाहरण दिया गया है. लेकिन हमें ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि सलमान रुशीद के द्वारा ये बुक लिखी गई है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020. So next important news headline is the last of today's IPL 2021 to resume in the UAE in September to October. The Board of Control of Cricket of India or BCCI has confirmed that the IPL 2021 Phase 2 will be held in the UAE during the September to October window. In a special general meeting chaired by BCCI President Sourav Ganguly, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) confirmed to the state units that the tournament will have to be shifted out of India on account of monsoon. हमें पता होना चाहिए कि UAE में सितंबर से अक्टूबर में फिर से शुरू होगा IPL 2021. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पुष्टि की है कि IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन UAE में सितंबर से अक्टूबर में होगा. BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की अध्यक्षता में एक विशेष आम बैठक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राज्य इकाइयों की पुष्टि की
कि टूर्नामेंट को मानसून के कारण भारत से बाहर स्थानांतरित करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। यूएई में होगा IPL फेज 2। So guys, now let us talk about 1st of June 2021 related current affairs. So today's first question is, who has developed an innovative self-pollinating apple variety called HRMN99? So option 1 is Jagdish Prasad Parikh, B. Bharat Bhushan Tyagi, C. Harimansh Sharma, D. Kanwal Singh Chauha. So answer is C. Harimansh Sharma. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सेल्फ पॉलिनेटिंग एप्पल वेराइटी HRMN99 इज डेवलप्ड बाय हरिमंश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड द न्यूली कमीशन्ड इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर? सो ऑप्शन नंबर 1 इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन C इज माजागॉन डॉक लिमिटेड, ऑप्शन D इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सो हमें याद रखना है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये नया इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल साजग को बनाया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया 2 co-consignments of 4.5 megaton of patented village rice was exported to Ghana and Yemen via air and sea routes? So option number 1 is Thanjar, option 2 is Coimbatore, option 3 is Irado और option D is Dindigul. So option number 1 Thanjar is the correct answer। हमें पता होना चाहिए कि 2 कंसाइनमेंट दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, जो कि 4.5 मेगाटन पेटेंट राइस विलेज राइस को एक्सपोर्ट करेंगे घना और येमेन में थ्रू एयर और सी रूट्स थंजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ co-winner of the Go Matto Look into the matter of concession and exemption from GST to COVID relief materials? So option number 1 is Naveen Singh, option B is Konark Sangma, option C is Nitin Bhai Patel and option D is Ajit Pawar. So answer is option number B, Konark Sangma। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि गो मटो मैटर ऑफ कंसेशन के एग्जेम्पशन के लिए GST को कोविड रिलीफ मटेरियल मानने के लिए कोनार्क संगमा का नाम दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कोनार्क संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, which of the following has won the Asian Boxing Championship 2021 in Dubai? So option A is Mary Kom, option 2 is Pooja Rani, option C is Lal Butta Shahi, option D is Mahabalodu Monolonovo. So answer is B, पूजा रानी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 जो कि दुबई में हुई है, इसमें स्वर्ण पदक पूजा रानी जी को मिला है और मैरी कॉम को जो है रजत पदक मिला है 51 किलो कैटेगरी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हेन इज गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो ऑप्शन A इज 30th of May, ऑप्शन B इज 29th of May, ऑप्शन C इज 31st of May, ऑप्शन D इज 28th of May. सो आंसर इज A, 30th of May। गोवा का स्टेटहुड दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट गोवा इज पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च द नैनो यूरिया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैनो यूरिया किस कोऑपरेटिव कंपनी द्वारा बनाया गया है। सो ऑप्शन A इज कृषक भारती कोऑपरेटिव, ऑप्शन B इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ऑप्शन C इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ऑप्शन D इज राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। सो आंसर इज ऑप्शन B, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव द्वारा नैनो यूरिया जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजिंग Steadfast Defender 21 War Games military exercise in Europe? So option number 1 is United Nations, B European Union, C Southeast Asia Treaty Organization, D North Atlantic Treaty Organization or NATO. So answer is D, NATO।
नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टीडफास्ट डिफेंडर नामक ये 21 वार गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की जाएगी यूरोप में। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच was the name of the last surviving member of the Indian Constituent Assembly who passed away recently? So हमें बताना है कि लास्ट सर्वाइविंग मेंबर कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी के जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सो ऑप्शन ए इज़ राज बहादुर, ऑप्शन बी इज़ गोपीनाथ बरडोली, ऑप्शन सी इज़ एस.के. पाटिल, ऑप्शन डी इज़ टी.एम. कालियानन गाउंडर। सो आंसर इज़ डी, टी.एम. कालियानन गाउंडर जो थे ये लास्ट मेंबर बचे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट के और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक 1232 किलोमीटर अ लॉन्ग जर्नी होम? सो ऑप्शन ए इज़ मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी इज़ श्रीकांत मिश्रा, ऑप्शन सी इज़ विनोद कपरी एंड ऑप्शन डी इज़ अजय यादव। सो आंसर इज़ ऑप्शन सी विनोद कपरी। हमें पता होना चाहिए कि विनोद कपरी द्वारा लिखी गई है ये किताब 1232 किलोमीटर घर से दूर एक जर्नी, द लॉन्ग जर्नी होम 1232 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इन May 2021 हु लॉन्च द वुमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड उड़ान स्कीम थ्रू आउट पंजाब? सो हमें बताना है कि उड़ान स्कीम मई 2021 में लॉन्च की गई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये पंजाब में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सो ऑप्शन ए इज़ सुखपाल सिंह खेरा, ऑप्शन बी इज़ अरुणा चौधरी, ऑप्शन सी इज़ प्रीनीत कौर, ऑप्शन डी इज़ अंबिका सोनी। सो आंसर इज़ बी अरुणा चौधरी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। वुमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड उड़ान स्कीम पंजाब में लॉन्च की गई है मई 2021 में अरुणा चौधरी द्वारा। Next question number 12 is recently the Hindustan Unilever Limited has donated 34 ventilator worth rupees 4 crores to which state? So हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा 34 वेंटिलेटर 4 करोड़ रुपए में दिए गए हैं किस स्टेट को? ऑप्शन ए इज़ गुजरात, ऑप्शन बी इज़ पंजाब, ऑप्शन सी इज़ हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज़ महाराष्ट्र। सो इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र राज्य को दिए गए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा 34 वेंटिलेटर्स एंड कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र इज़ मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज़ हु इज़ दी what? Next question number 13 is what is the theme of World No Tobacco Day? So हमें जैसा कि पता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है 31 मई को बनाया गया, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी ये हमें बताना है। सो ऑप्शन ए इज़ प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़, ऑप्शन बी इज़ कमिट टू क्विट, ऑप्शन सी इज़ टोबैको एंड लंग हेल्थ, ऑप्शन डी इज़ टोबैको एंड हार्ट डिसीज। सो आंसर इज़ ऑप्शन बी कमिट टू क्विट is the theme of World No Tobacco Day 2021 celebrated on 31st of May. Important है, हमें याद रखना है commit to quit. Next question number 14 is the last question today. Which day marked the 296th the birth anniversary of महारानी अहिल्याबाई होलकर? So महारानी अहिल्याबाई होलकर की 296वें वर्षगांठ कब मनाई गई है? So हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ 28th of May, ऑप्शन बी इज़ 29th of May, ऑप्शन सी इज़ 30th of May एंड ऑप्शन डी इज़ 31st of May. सो 31 मई को महारानी अहिल्याबाई होलकर की 296 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि मालवा प्रांत की बहुप्रसिद्ध महारानी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी। सो आई होप गाइज आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं। सो प्लीज़ आप इन्हें लिखिएगा, पढ़िएगा और याद करिएगा और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्ट ट्यूटर्स। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्ट ट्यूटर्स। थैंक यू।